So I would request Dr. Abu Saleh Sharif, our first guest speaker, who is a distinguished economist, social scientist, demographer, and a transformative leader, renowned for his role as the member secretary of the Sachar Committee and the principal author of the report. He has profound influence on public policy, and he has advocated for equity and justice for marginalized communities in India. He is the chief scholar at the US-India Policy Institute at Washington. He is president of the Center for Research and Debates in Development Policy, New Delhi, chief economist at the National Council of Applied Economic Research, New Delhi. He was a senior research fellow at the Food Policy Research Institute, Washington, DC, secretary of the Prime Minister's High-Level Committee during 2004 and 6, and the Ministry of Home Affairs, Government of India. He was nominated to the 13th Finance Commission by the Finance Ministry, Government of India. He has a doctorate from Australian National University, Canberra, a postdoctoral from Yale University, and he has featured on the India Today's magazine Faces of the Millennium. Ladies and gentlemen, it is my honor to welcome Dr. Abu Saleh Sharif to share his insight. Dr. Abu Saleh. K. Khadir Saab, he is such a hidden gem in India. He is doing work not only in Karnataka, and he is doing work not only for any particular community. His model is there to emulate everywhere in India. कि मुस्लिम्स इंडिया में 1947 में किस हालात में होगा, और उसका एक कंक्लूजन, मैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं, ये मेरे अपने विचार हैं. एनविजनिंग ए विजन 25th century India at world stage. India is not a nation, it is a subcontinent. 1.5 billion people. क्या एक आदमी उसको डेवलप कर सकता है? आप बताइए, इंडिया को डेवलप कौन कर रहा है? एनीबडी? पीपल ऑफ इंडिया आर द वन हु इज डेवलपिंग. उसका मतलब है सिंस इंडिपेंडेंस जो डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, institution building, formal institutions. Khadir Saab is talking about building institution for Ummah. But government is also building institutions. So those institutions and the people have developed India, not one person. कभी गलती में नहीं रहना. कोई एक इंसान कोई कंट्री को डेवलप नहीं कर सकता. उसके अपने पीपल डेवलप कर पाएंगे. आज हमारी इज्जत इसलिए कम हो रही है कि वी आर नॉट स्टैंडिंग इन द क्यू टू वोट. वोट ही एक ही वही चीज है जो मुसलमान को इज्जत देगी. अगर आप वोट ही करने नहीं जाएंगे तो आपको लात मार के बाहर भेजेगा. तो वोट करने नहीं आता तो तेरी कोई जरूरत नहीं है. तो पंचायत लेवल, कॉरपोरेशन लेवल और वोटिंग बूथ के लेवल पे मुस्लिम का पार्टिसिपेशन 100% होना यह जरूरी है मुसलमान को रेस्पेक्ट मिलने के लिए. अगर ये नहीं करेंगे मुसलमान को रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला. पार्ट ऑफ द होल. वी मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ द होल. द होल इज होल इंडिया. द गवर्नमेंट इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया. वी नीड टू फाइट दैट आउट. हमारे राइट्स हैं एज सिटीजन. We will tell you how to fight that. You can fight that with the data, and you can fight that with research not only done in Delhi and Bidar and Bangalore, but also in London, but also in Kuwait, but also in Washington DC. The whole world is looking for India because 21st century is India's century, and the whole world wants to know what is happening in India. There are constraints एंड अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक हो रही है. पॉलिटिक्स हमें हलाल करना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है. आई एम यूजिंग द वर्ड हलाल इन ए वेरी नेगेटिव मैनर. तो उसको झेलते हुए वी नीड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी बेसिक नीड फ्रेमवर्क. वी नीड कोटा. पॉलिटिक्स के अंदर हमको धसाया जा रहा है कोटा सिस्टम के. सच्चर कमेटी के बाद सच्चर में हमने रिकमेंडेशन, हमें मालूम है कि सिर्फ रिजर्वेशन से मुसलमानों का कोई भला नहीं होगा. राइट्स अप्रोच में मुसलमानों का भला हो सकता है. ऑक्यूपेशन बेस्ड एसोसिएशंस मुसलमानों के बनाना बहुत जरूरी है. ये मैं बता देता हूं इसलिए कि अभी मुसलमानों के इदारे बनाने में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं.
मगर अगर कोई ऑक्यूपेशन है, कोई काम काज है, जैसा कि ऑटो ड्राइवर्स हैं, जैसा कि इलेक्ट्रीशियंस हैं, जैसा कि प्लम्बर्स हैं, जैसा कि मैंगो मर्चेंट्स है, जैसा कि गन्ना किसान है, तो अब जो इस तरह के एसोसिएशंस बनाना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों को। मुसलमानों को उस तरह के एसोसिएशंस इदारों में ज़्यादा नहीं है। वो जब ऑक्यूपेशन बेस्ड एसोसिएशंस बन जाएंगे तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि एसोसिएशंस कैन ओपन बैंक अकाउंट्स, एसोसिएशंस बिकम ए, जैसा एक ह्यूमन बीइंग को जो राइट्स मिलता है वही राइट एक इदारे को भी मिलता है, एक एसोसिएशन को भी मिलता है। वो इदारों की तंजीमें करना पड़ेगा और वो ऑक्यूपेशन बेस्ड होने चाहिए, जिसमें हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, मुसलमानों के अलग अलग तबके सब मिलके ऑक्यूपेशन बेस्ड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई प्रोग्राम्स हैं जो ऑक्यूपेशन बेस्ड फाउंडेशंस को फैसिलिटेट करता है। इंडिया मुस्लिम विमेन को स्टेज पे लाना ये मुसलमानों का फर्ज है, तो मुस्लिम बच्चियों को स्टेज पे लाना ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुस्लिम्स के फ्यूचर के लिए। और देखिए अर्बनाइजेशन, मुसलमान ज़्यादातर शहरों में बसता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा है, हर डिस्ट्रिक्ट की जानकारी हमारे पास है। आप रामपुर बोलिए, आप जोधपुर बोलिए, आप कोई भी सिटी डिस्ट्रिक्ट देखिए, हमारे पास उसके आंकड़े हैं। हमें पता है कि वहाँ एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ पे घरों में पानी इलेक्ट्रिसिटी मिलता है नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह। ये पूरा रिसर्च आपके इधर में, और हम आपको सपोर्ट करेंगे कि इसका रिसर्च कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम।